Okay, so Raj, let's proceed ahead with your technical snap for Assistant Professor, Bihar Public Service Commission. Which subject you have prepared, Raj, today? The thermodynamics heat transfer. तो सबसे पहले तो आप मेरे को इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस बताइए। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? सर thermodynamics and heat transfer difference ये है कि thermodynamic जो heat transfer है that is a part of thermodynamics, means you can say that it is a daughter of thermodynamics. Heat transfer में क्या होता है सर, it deals with the rate of change of heat transfer. अगर हम दो bodies ले upper temperature and lower temperature, उनके बीच में जो heat transfer हो that deals with heat transfer. अब उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इफ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट हीट विच इज टेकन बाय द इंजन इनटू वर्क, देन that deals under thermodynamics. So can we calculate heat energy at a point? No sir, we can't. Heat energy is a path function, so there need to have a process to calculate this. अच्छा, अगर मैं आपको एक पीवी डायग्राम पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दूं, Right. तो आप हीट एनर्जी फ्लो कैसे निकालेंगे? Sir, PV diagram पे horizontal line that defines constant pressure. Sir, is it expansion or contraction? No, that you tell me. So if it is moving from left to right, then it is expansion. We can calculate the work under the area of that horizontal line, but we can't calculate it in PV diagram. We have to make this चलिए in मेरे को ये TH बताइए, diagram. आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है? Isobaric process में heat transfer mCp delta T. हाँ, तो क्यों नहीं निकाल सकते? आप निकाल तो सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। निकाल तो सकते हैं, but we don't have the delta T here. So do you need delta T if I give you PV? Yes sir. Can't you calculate T1 in terms of P1 and V1? P1 in terms of P1 and V1. आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो। PV equal to RT. Yes sir, PV upon R. Okay sir. Right sir. I can get. निकल जाएगा। Yes sir. अच्छा, अगर मैं P1 आपको V1. टीएस डायग्राम पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे दूं, फिर कैसे निकालोगे? Simply the area under that line. बताइए कितना आएगा? T cross S2 minus S1. और Change S2 in माइनस entropy. S1 कैसे निकालोगे? The delta S is calculated as फॉर्मूला से कैसे निकालोगे? Cp ln T2 upon T1. आइसोथर्मल प्रोसेस। Yes जो sir. कोई एग्जांपल दीजिए जरा राज, मेरे को आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जांपल दीजिए। Isobaric sir, boiling of water under standard conditions. अच्छा, एक ना पिस्टन सिलेंडर लीजिए आप, और उसमें आइसोबैरिक और आइसोकोरिक हीट एडिशन कीजिए। Piston cylinder, isobaric and isochoric. पिस्टन सिलेंडर लीजिए, उसका डायग्राम बनाइए और बताइए उसमें आइसोकोरिक और आइसोबैरिक हीट एडिशन कैसे करेंगे आप? This is cylinder, this is piston, and I am heating it. And this will be isochoric if the piston is resisted to move. Okay. Then this will be isochoric heat Mm-hmm. addition. If I allow it to move upwards so that the pressure remains constant, then that will be isobaric heat addition. सही है। अगर अगर इसको मेरे को आइसेंट्रोपिक हीट एडिशन करना हो फिर? Sir, isentropic heat addition. Isentropic means constant entropy. That is possible only if the process is adiabatic, means Q is equal to 0. Also, it should be reversible, adiabatic and reversible. Then only it can be isentropic. This burner it should be removed. And will it become adiabatic if you remove burner? No sir, I have to insulate it from surroundings.
And the पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में कुछ बता सकते हैं राज? polytropic process is defined as PV raised to power gamma is constant. PV raised to power n is constant. This is called polytropic process. अच्छा, मेरे को लेटेंट हीटिंग और सेंसिबल हीटिंग के बीच में डिफरेंस बताइए. The latent heat and sensible heat is, first of all, sensible heat. If we heat something and its temperature changes, then this is called sensible heating. And the temperature, if doesn't change, then it is called latent heating. Example of latent heating is boiling, condensation. अभी ये जो रूम है जो हम जिसमें बैठते हैं, अगर हमें उसमें एसी लगा रखा है तो वो कौन सी हीटिंग को रिड्यूस करता है, लेटेंट या सेंसिबल या दोनों? सर वो दोनों को करता है. और किस रेशियो में करता है? कितना परसेंट लेटेंट हीटिंग को करता है रिड्यूस और कितना परसेंट वो सेंसिबल हीटिंग को रिड्यूस करता है? आपने टर्म सुना है सेंसिबल हीट फैक्टर? यस सर, RS. क्या होता है राज? सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सर सेंसिबल लोड अपॉन सेंसिबल लोड प्लस लेटेंट लोड, लेटेंट हीट लोड. रूम के लिए कितना होता है? रूम के लिए आई गेस सर मोर देन 50%. या किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है ये? डिपेंड तो मॉइस्चर पे करता ही है सर. और रूम का मॉइस्चर किस पे डिपेंड करता है? रूम का मॉइस्चर कितनी मॉइस्चर खिड़कियां लगी सर. हैं, धूप डायरेक्टली आ रही है कि नहीं आ रही, कितने लोग अंदर बैठे हैं, यस रूम सर. क्या है, बेडरूम है या किचन है, इस पे डिपेंड नहीं यस करेगा? सर. यस सर करेगा. अच्छा, मेरे को अगर टॉयलेट में एसी लगाना हो तो कौन सा हीटिंग ज्यादा रिड्यूस करनी पड़ेगी टॉयलेट के अंदर? लेटेंट हीटिंग सर. और किचन के अंदर? सेंसिबल हीटिंग. श्योर, किचन के अंदर सेंसिबल हीटिंग. यस सर. ओके, चलो ठीक है राज, अब मैं आपको फीडबैक देता हूँ. देखो, लेवल अच्छा है, पकड़ लोगे तुम राज, बस तैयारी करो. मैराथन सारे निपटा दो. जो स्नैप्स पड़े हुए हैं पैनल के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे ही क्वेश्चन हर बच्चे से यस पूछे सर. जाते हैं. आपने बस क्या करना है, आपने स्नैप ओपन करना है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सुनने हैं और ये देखना है कि तुम्हें आंसर आता है कि नहीं आता है, और फिर वो तैयारी करना स्टार्ट करनी है. क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस बेस पे भी होते हैं, जो हम फीडबैक लेते हैं ना बच्चों से. भाई अब आप इंटरव्यू दे के आओगे राज, तो आपसे मैं पूछूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे वहां पे आपसे, वो क्वेश्चन हम आपसे पूछते भी हैं फिर. तो आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा यार, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि उसने बाथरूम का बता दिया कि बताओ सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग, बाथरूम में क्या फैक्टर होगा, किचन में क्या होगा, रूम में क्या होगा. अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज में और वहीं से हमारे दिमाग में होते हैं. फिर जब इंटरव्यू से हम करते हैं तो हम वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे. अब आपने क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाना है कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं और मेरे को आंसर आता है कि नहीं आता है. अंडरस्टैंड? तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे वैसे ही पूरे दिन में 10 बच्चों के साथ और भी चल रहा है मेरा स्नैप. और जैसे मैं कर रहा हूँ 5 टीचर और लगे हुए हैं. तो तुम समझ लो कि राज कितना ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है तुम्हें तैयारी करने के लिए. वो आपसे बोर्ड पे जाके बोलेगा तो टीचिंग तो आपने वैसे ही किया हुआ है, आपको वैसे बेनिफिट रहेगा उसका. तो आपका अच्छे आंसर निकल के आएंगे. तो ऐसा कर ले. और अभी एनालिसिस किया कर अपना कि कौन सी क्वेश्चन कहाँ मैंने गलती किया, ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या करना चाहिए था. जैसे आइसोबैरिक, वहां तेरे को प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं आया. आइसोबैरिक प्रोसेस में एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, ये तो तुम ही बता सकते हो ना. एक्सपेंशन कंप्रेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है और हीट इंटरेक्शन निकालने के लिए. अगर मेरे को हीट ट्रांसफर निकालना है, हीट इंटरेक्शन निकालना है, तो आई नीड नॉट टू नो वेदर इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन. इवन फॉर वर्क, इवन फॉर वर्क you need not to calculate. Say sometime you will say एक horizontal line लो, वर्क निकालो. You should say you are calculating displacement work. Right. Because if it is study flow work, it is 0. So you should tell him that sir, I am calculating displacement work now. Right. Because study flow work is not there. So that way your knowledge should actually be reflected. So sir, if you give me P1, V1, P2, V2, then sir, I can calculate P1 is equal to P2. So displacement work is P into V2 minus V1.
Answer for isobaric process heat transfer formula is mcp delta t. So if I will get to know what delta t, अब देखो हमने कहाँ गलती किया. पहले आपने पूछा एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, नॉन, दैट इज नॉट रेलिवेंट क्वेश्चन. फिर आपने बोला सर कि हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, नंबर कट के, टेम्परेचर चाहिए नहीं, आइडियल गैस अज्यूम करो, और अज्यूम करो जो बोल रहे हो कि सर आई एम अज्यूमिंग आइडियल गैस, नाउ आई कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 is equal to mRT1, assuming that I know characteristic gas constant, and then I can calculate sir T1 and T2 this way. वो ये चीज तुमसे चाहता है, जब बोर्ड पे खड़े हो जाओगे ना तुम राज, तो चाहता है कि तुम सारी बात उसको बताओ, जहां assumption है वो भी बताओ, डिस्कशन बताओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके आओ. लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड बिना नॉलेज के नहीं आता, और नॉलेज एक्वायर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं मंत्रा, वो करो आप. नॉलेज एक्वायर करने के लिए 10-15 घंटे दे दो, तब तुम्हें इंटरव्यू की तरफ से फील आएगा कि हाँ मैं अब इसको कर सकता हूँ. ऐसे करो और करते रहो. HR लगाओ, टेक्निकल स्नैप लगाओ, लेकिन तैयारी करके लगाओ. ठीक. सो मेनी मेंटर्स, हर मेंटर तैयार है अभी, और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 15-20 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा नहीं है. 15 दिन है, उसमें तुम हर मेंटर का एक्सेस करो, स्नैप लगाओ, टेक्निकल स्नैप लगाओ, अपना नॉलेज उसको बताओ, और उससे क्वेश्चन आएंगे, उसको सीखो. दैट इज हाउ यू हैव टू डू. डन. Okay, sir. Done, sir.